So, hello everyone. Today I'm going to tell you about document object model. So, what basically DOM is? It's used for creating dynamic HTML. It's basically a representation of the same HTML page, but in the structure of a tree having objects. By using this model, JavaScript. Okay, so as I was saying, using DOM, we can create dynamic HTML. In this model, basically the HTML page is having the structure of a tree with objects. And using this model, JavaScript gets to access all the HTML elements, the attributes, and manipulate them as and when needed. So, like for example, we might want an event to occur when we click on a button, or for example, on the completion of a task, we might want a flash message to appear on the screen, or some alert to appear as and when needed, and all that is regulated by DOM. Like the input field or the button is created using HTML and CSS, and JavaScript gets to access that and modify it using DOM. So how do we select that particular element that we want to manipulate or access? That's done using DOM selectors. So the selectors which are broadly used are get element by ID or tag name, by class name or query selector all. When we created HTML, we saw that we often assign class names or IDs to particular elements. So now by using those particular IDs or that class name, we can just access that element. The syntax for doing that, as you can see, is document.getElementById, and that particular ID or that particular tag name or that class name, and then we have this query selector all, which is used to select all the elements that match a particular CSS selector. When we use a query selector, it gives us the first matching element that match the particular selector. And when we use query selector all, we get all the elements which match that particular CSS selector. Right? So now once we have accessed that element we want, how do we modify it? How do we manipulate it? That's done using properties and methods. So as you can see, the list of the important properties and methods. You can get a particular attribute, or you can set a particular attribute. You can create an element, remove it using all these properties. And similarly, we have methods to modify. For example, inner HTML will help us modify the inner content of the particular HTML element, value, style. We can set or we can modify a particular CSS element style or an HTML element style. Inner text content. Similarly, we have many other methods by which we can do that. So just let's see one example of how we do this. For example, let's see this. We have an HTML file, a paragraph with an ID demo, and inside the paragraph, we have learning DOM. So if I run this page, one second. Yeah. So if I run this, first we get learning DOM, and then I have a button also, which I'll be coming to later. So for example, we don't want this to be learning DOM. We want to modify this inner HTML and set it to something else. So how can we do that? So as we know that inside an HTML file, if we want to use JavaScript, we use the script tag. And so now we will access that particular ID by document.getElementById demo, right? And we want to modify the inner HTML of it. So we will do that using inner HTML method. And suppose we set it to welcome, right?
So now if we reload the page, we see that this has changed to welcome. So by this, we can, inside a JavaScript file, we can change the HTML content of a particular element. Similarly, all the other elements can be used in the same way, the other properties or methods, sorry. So next, we come to JavaScript events. Like as I said previously, we might want something to occur when a button is clicked or when we submit a form, or suppose an input field is changed, we might want an alert message to flash on the screen, or when a web page has finished loading, we might want some event to occur, some flash message to appear or some alert to appear. And that is regulated using DOM by some event handlers, which we are going to see now. So these are all the mouse events. For example, on click, on mouse over, or on mouse out. On click means when you click on a particular HTML element, that is one particular event. And similarly, we have keyboard events too, like on key down. These are the list of the mouse events when you right click on an element, or when you double click, or mouse pointer moves over an element, moves out of an element. These are all your mouse events. And next, and then we have all our keyboard events too, like on key down, on key up. So how does this work? Let's just understand with the help of an example. Okay, sorry. Okay, suppose let's have an H1 tag initially with some particular heading, and suppose when we click on it, we want the heading to change. So how will we do it basically? H1, sorry. Let's just initially have demo inside it. So initially we have our H1 tag with demo. And when I want to click, and when I will click on it, let's just change it to presentation, suppose, for example. So we will have an on click equal to, we want to change the inner HTML of this H1. So we will do that using this.inner HTML and set that to presentation. Right. So now when we reload the page and click on demo, we see that it changes to presentation. We click on demo and it changes to presentation. So this is how the on-click event works. And similarly, all the other events to work in the same manner. You can just go through all these later. All of them work in the similar manner. Now, similar to on-click, we have an add event listener method. By this method, you can access not only HTML elements, but the entire window object too. Now, what is the window object? It's nothing but just the window which is open at this moment. For example, what event can occur on the window object? You might want to resize the window. Like that can be an event on the window. And when you do that, a message appears on the screen, suppose. So that can be handled by the add event listener method. So just see the syntax. First, you access the element which you want to modify, and then the add event listener, the event which is happening, for example, click, and then the function which you want to execute when that particular event occurs. And then we have a third parameter, use capture, which is basically used to handle event bubbling or event capturing. I'm going to tell you about that in a few minutes. First, let's look at these two. First, we have the event, first parameter, and then we have the function which we want to call when the event occurs, right? So, okay, so first, just before we do this, let's see an example of how this add event listener method works. So I have, look at this part of the code.
We have a button with the ID B1 and we have an H1 tag with the ID text. What we want is that when initially we have nothing inside H1, but what I want is when I click on the button, an H1 appears on the screen. Let's say hello, right? So what I'll do is first I'll access the button element, get element by ID B1, and then add an event to it. The event we click, when I click on the button, this function gets called. We might define this function outside also and call it here, or we can define it within also. That's an inline function. So I have defined it inside itself. So when you click on that particular button, this function gets executed. And inside the function, what we are doing is we are accessing the H1 element, we are accessing it by its ID text, and we are modifying the inner HTML and setting it to hello. Okay, so let's just see how this works. Here we have the button which says click me. Once I click on it, I get an H1. A hello appears on the screen, right? I reset it, it is once again like this. I click on it and we get an H1 appearing on the screen, right? So this is how the add event listener function works, the method works. Yeah. So before I do this, let's first see a few more examples of add event listener. For example, I want that when I click on a particular element, for example, a button, I want my function to be called. And what is happening inside my function? An alert is being raised on the screen, hello world. So this is what will happen, that when you click on the element, an alert will flash on the screen. Similarly, another example, yeah, what happens when you resize the window? As I said, the window object, the entire window which is open at the moment, when you resize, this function gets called. And inside that function, what we are doing, we are accessing a particular element with the ID demo and modifying its inner HTML. So this is how the add event listener function works. So now let's come over to event bubbling and event capturing. So this is used when, this is a concept which is related to nested elements. For example, if you have one element inside another, like a P element inside a div element. So, and when you apply some event handlers to it, how will it work? There might be two options. First is that the inside element, on the inside element, first the event occurs and then on the outside element, or vice versa. First it occurs on the outside element and then the inside element. So these two things are called event bubbling and event capturing. Event bubbling is basically when the innermost element's event is handled first and then the outer, and capturing is just the opposite of it. The outermost element is handled first and then the innermost element's event, right? And how this is regulated, whether event bubbling will occur or event capturing, that is done by the use capture parameter of the add event listener method, right? The default value of use capture is false. And when the default value is false, event bubbling occurs. And when we set it to true, the event capturing will occur. Okay. So just let's see a small example to demonstrate this. Okay. So here I have one nested element. First I have a parent element, and inside it we have nested a child element, right? So when I apply the add event listener method on the child element, it will apply to both the child as well as the parent element because it's nested inside the parent element. But in what order it will occur is regulated by this parameter, false or true. If it's set to false, then first the event will occur to the parent element and then it will occur to the child element. And if it's set to true, the opposite will happen. So just let's see what basically we are doing here is when we click on the child, the alert is flashing that you click the child element. And if I click on the parent, the alert is flashing that you clicked on the parent element. And we have our attribute set to, the parameter set to false, which basically means that first we should get this message because it's the outer element. And then we should get the child elements message because that's the inner element. So
Just let's run this. Okay. So now let's see, when I click on the child element, first I get the message that you click the child element, and then when I click OK, I get the next message that is you click the parent element. Similarly, if you set that to true, the opposite will occur. Sorry. Now when I click on child, I first get the message that you click the parent element, and then I get the message that you click the child element, which is basically your event capturing, right? So that's it. That's how you use DOM. So now your seniors will take over and explain you how we will create a project. We will learn how to create an entire project using HTML, CSS, and JavaScript. So that's it. हेलो। आ रहा है ना आवाज? चलो यार, प्रोजेक्ट करवा देते हैं। वेट अ सेकंड। Hello everyone. So you will make a project regarding PokeDex. We will make a PokeDex project in 2 days. तो 2 दिन में बना देंगे। आज HTML और CSS करवा देंगे और कल हर्ष और मार्मिक शायद जावास्क्रिप्ट कर देंगे। So let's start. So ये तुम लोग का बेसिक फाइल स्ट्रक्चर दे दिया होगा तुम लोग को शायद पूरा दे दिया होगा जावास्क्रिप्ट के साथ। मेरे पास अभी एचटीएमएल में फिल करके रखा हो, वरना उतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एचटीएमएल फाइल है, ये तुम देख रहे होगे हेडर टैग बेसिक 3 सीएसएस फाइल लिंक्ड है और तीनों अभी ब्लैंक है। आफ्टर दैट बॉडी में तुम्हारा डिव है, एक इमेज है, कंटेनर है। बहुत बहुत बेसिक है यार, तुम लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो सब देख लेना। और हाँ, बूटस्ट्रैप तुम लोग को, कुछ लोग को अगर आता होगा बहुत सही है। बूटस्ट्रैप हम लोग सीडीएन बूटस्ट्रैप का सीडीएन यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़रा देख लेना। अभी नीचे भी है शायद। हुँ, तो वो देख लेना। बूटस्ट्रैप बहुत सही लाइब्रेरी है, बहुत जल्दी काम हो जाता है।
तो CSS यार बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, नेट से छापना ही होता है जनरली, मेन जावास्क्रिप्ट होता है, HTML ठीक है कर लेना, CSS ये सब टेलविंड होता है, बूटस्ट्रैप होता है, वहाँ से सीख लेना, फ्रेमवर्क्स होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लाइव सर्वर पोर्ट पोर्ट में चल तो रहे हैं, हाँ। तो ये बेसिक HTML से बनाओगे तो ये होगा। अभी हम लोग इस पे CSS अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी कैसे बनता है। सिलेक्टर्स तो पता ही होगा, ये पूरे बॉडी को सिलेक्ट कर देता है। अरे तुम लोग को बूटस्ट्रैप आता होगा ना? आना चाहिए, हम लोग भूल भी गए। बॉक्स साइजिंग, पोजीशन ये सब करा दिए थे, ये सब फर्स्ट वर्कशॉप में किए थे हम लोग। सो तुम लोग को शायद दे दिए थे हम लोग, सारा मटेरियल मिल गया था, तो वहाँ से देख लेना। टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी करा देना, बाकी तुम लोग अच्छे से तो कर ही लोगे। ये सिलेक्टर्स है, आई ये तुम्हारा क्लास सिलेक्टर, डॉट के बाद हम लोग क्लास लिख देते हैं। ये तुम्हारा पूरा बॉडी को सिलेक्ट कर देता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखो डिस्प्ले बहुत सारा होता है, ये देख लो। CSS डिस्प्ले, अन इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक तुम्हारा पूरा एक लाइन कवर कर लेता है, इनलाइन एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, ब्लॉक तुम्हारा पूरा एक लाइन का स्पेस ले लेता है। और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक होता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, लेकिन तुम्हारा मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप ये सब को वो कंसिडर करता है, जो कि इनलाइन नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है, ये देख लेना। तो और ये आईडी सिलेक्टर, सबमिट फॉर्म, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सबमिट फॉर्म। ये देखो इस div को सिलेक्ट कर रहा है, ये वाला जो इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे CSS वो इस पे अप्लाई होगा, इस div के ऊपर। टॉप लेफ्ट पोजीशनिंग के लिए देख लीजिए। पैडिंग, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पहले पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन होता है। ये भी पता था मैंने फर्स्ट में, बॉक्स मॉडल होता है। ठीक है, देखो हम लोग इसको ये कर दिए, इनलाइन ब्लॉक कर दिए, रिलेटिव कर दिए, तो अभी धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से स्टाइल है वो, तुम लोग जैसे एक्सप्लोर करोगे दिख जाएगा।
थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है थोड़ा। मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये भी आईडी सिलेक्टर है, इसका भी कुछ आईडी होगा एचटीएमएल में। कंट्रोल एफ से सर्च कर सकते हो इसमें। ट्रांस ये देखो इस डिव का आईडी है, तो इस डिव को सिलेक्ट कर देंगे, फिर हम लोग ये सब अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखे थे अभी, ये ऑरिगेन ब्लॉक टेक्निकली तुम्हारा पूरा विड्थ ले लेता है। पैराग्राफ टैग हो गया, वो ब्लॉक एलिमेंट है। पैन इनलाइन है। ऑटो मतलब जो अवेलेबल स्पेस है पूरा ले लेगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं है। इमेज फील्ड था, इमेज फील्ड था ना। इमेज फील्ड, यप, इमेज फील्ड। तुम लोग को वो फाइनल वो भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा देख के चलेंगे। बॉर्डर 3 पैरामीटर ले लिया, एक सॉलिड, जो कि सॉलिड बॉर्डर दे देता है 3 पिक्सल लेंथ का, ग्रे कलर। थोड़ा राउंड करना है तो एक बॉर्डर रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी 0.3। CSS यूनिट्स होता है बहुत सारे, देख लो, बहुत सारे CSS यूनिट्स होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स, रिलेटिव यूनिट्स। एक तो होता है नॉर्मल पिक्सल, पिक्सल में कर देंगे। एक होता है रिलेटिव यूनिट्स, EM, REM होता है, VW, VH। हर एक का एक REM शायद 4 पिक्सल होता है, जितना मुझे याद है। देख लेना। लेफ्ट 35 पिक्सल, हाइट 5%, 25%, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, एक शॉट। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखना। बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज भी एक होता है अगर तुम लोग को पता है। तो बैकग्राउंड साइज बेसिकली कैसे बैकग्राउंड तुम्हारा रहेगा, बैकग्राउंड दिखेगा क्या, बैकग्राउंड साइज। देखो ये सब होता है ऑटो, लेंथ, कवर, कंटेन, हर एक का अलग अलग वो रहता है, मीनिंग रहता है, वो देख लेना। कवर
एंटायर कंटेनर को कवर करने के लिए रिसाइज कर देते हम लोग इसको, इमेज को। कंटेन रहता है कि इमेज अच्छे से विजिबल हो। लास्ट में एक बॉक्स शैडो करके होता है। तो बहुत सारे सीएसएस क्लासेस होते हैं, सब सीखना जरूरी नहीं है। मैं भी भूल गया था, तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में ये सब करना पड़ा। जनरली बूटस्ट्रैप और टेलविंड, मटेरियल यूआई, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स रहते हैं। जनरली उस पर हम लोग कर लेते हैं। जनरली क्या, हमेशा उस पर ही करते हैं। तुम लोग भी डब्ल्यूसी में शायद बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड, या जो मैं टेलविंड यूज किया था, जो मन में आए कर लेना। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा प्योर सीएसएस से करना। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबलसम लगता है। तुम लोग देख लेना। जीपी इसमें आरजीबी से कलर 90 90 रहता है ना, 90 90 90। और इस पे एक साइड पे 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, आरजीबी 100। ऑल्ट जेड से ये कर सकते हो कि इनलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया, इमेज फील्ड हो गया। देख लो, ये बॉर्डर बन गया है। ये वाला बॉर्डर बन गया। ये आउट ऑफ प्लेस है क्या? इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, हाइट 25 पे 26 का, 27% हो गया, 59 था। एग्जैक्ट पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो हमें वैल्यूज को एग्जैक्ट रखना होगा। हाँ देखो, अभी एग्जैक्टली फिट हो गया ये। पहले आउट ऑफ प्लेस था क्योंकि मैं इधर उधर थोड़ा कर दिया था, लेकिन अभी वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट है, तो हमें एक एग्जैक्ट बॉर्डर मिल जा रहा है। नेक्स्ट, मेन आईडी सिलेक्टर है, तो उसका बस कुछ नहीं करना, हाइट दे देना। हाइट 100%, विथ 100%। पार्ट्स बॉक्स, पार्ट शो के लिए बॉक्स होगा। वो शायद तुम लोग कल देख पाओगे कि वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही दिखेंगे कार्ड्स। तो अभी जस्ट सीएसएस वाला पार्ट देख लो। रियल फिनिश प्रोजेक्ट तुम लोग को कल ही दिखेगा। जावास्क्रिप्ट नहीं लगाओगे तो प्रोजेक्ट ज्यादा कुछ होगा नहीं। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से कर लेना। हम लोग खुद डब्ल्यूसी के बाद भी जावास्क्रिप्ट किया था, इतना वास्ट है। अभी भी शायद कर सकते हो। बहुत तगड़ी चीज है जावास्क्रिप्ट। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डिस्प्ले ये शायद हम लोग नहीं करवाए थे। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, दिखा देता हूँ तुम लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स, हाँ देखो ये होता है ना, तुम्हारे जो डिफ के कंटेनर्स है वो तो वर्टिकली अलाइंड हो जाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स लोगे तो हॉरिजॉन्टली जितना स्पेस लेना है उतना ही लेंगे, और फिर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। क्या है, पोकेडेक्स ओपन हो गया ना? ए यार, ये सब में बहुत टाइम लगता है, फालतू का टाइम जाता है, इसलिए वो लोग फ्रेमवर्क कर लेना।
बहुत सही चीज़ रहता है। कार्ड्स कोरियर इधर जा रहे हैं यार, कहाँ है कार्ड्स कोरियर? प्लस कोरियर ये कमेंट आउट है यार, प्लीज। चल ठीक है, कोई नहीं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स थोड़ा जल्दी करते हैं। पेडिंग 12%, टॉप 12%। पेडिंग लेफ्ट 13%। फ्लेक्स रैप एक रैप प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स का, ठीक है वो बता तो सकता हूँ, लेकिन तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आता। तो कर देखो, लास्ट में खुद से ही करना है, ठीक है? हम लोग जितना भी करा दे। पोजीशन वोजीशन तो आता होगा तुम लोग को, कराए थे हम लोग। टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, हाइट 100%, पूरा हाइट ले लेगा जितना अवेलेबल है, और विड्थ भी पूरा ले लेगा जितना अवेलेबल है। बस शायद हो गया इसका, और थोड़ा सा है। नैव्स नैव्स जेड इंडेक्स एक अच्छा चीज होता है यार, देख लेना। मैं ही बोल देता हूँ, जेड इंडेक्स बेसिकली तुम्हारा जेड एक्सिस पे कितना ऊपर है एक डिव या फिर एक कंटेनर जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जेड इंडेक्स। बेसिकली कितना जेड एक्सिस पे इसका पोजीशन डिफाइन करता है, जितना ज्यादा दोगे जेड इंडेक्स उतना ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। तो 1000 दे रहे, बाय डिफॉल्ट शायद 1 रहता है जेड इंडेक्स का वैल्यू। तो हम लोग 1000 अगर पुट करेंगे जेड इंडेक्स, टेक्निकली वो सबसे ऊपर रहेगा बाकी सबसे। और F15%। हाँ ये तो हो जाना चाहिए। प्रीवियस वाले बटन पे मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। इस बटन पे मार्जिन 20 पिक्सल। कंट्रोल सेव, देखते हैं क्या हुआ, चेंज कुछ आया क्या। ये दो बटन्स आ गए, इसको इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रुक जाना, ठीक है? यहाँ पे कुछ कुछ हो गया। तो वही है यार, बहुत ज्यादा सीएसएस लिखना पड़ता है थोड़ा सा करने के लिए, और धीरे धीरे बोर भी हो जाओगे सीएसएस लिखते लिखते। बूटस्ट्रैप, ये हो गया बूटस्ट्रैप, ज्यादा टाइम नहीं लगना। बूटस्ट्रैप बहुत जल्दी बनाने के लिए बहुत सही है। इसका ये हम लोग कैसे किए, हम लोग कैसे लाए थे? क्विक स्टार्ट कहाँ था? हाँ, ये सीडीएन लिंक्स कॉपी कर देना होता है अपने एचटीएमएल फाइल पे जहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करना है, फिर तुम क्लासेस में अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो बूटस्ट्रैप का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहाँ है कुछ का? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। हाँ ये सब बीटीएन वाला क्लास, ये सब बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, तो तुम ऑटोमेटिकली अगर बीटीएन लिखते हो तो ये एक बूटस्ट्रैप बटन बन जाएगा, अगर तुम ऑब्वियसली ये सीडीएन लिंक्स को यूज करते हो। टेलविंड भी होता है, मैं खुद टेलविंड यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है टेलविंड। उसका डॉग्स भी सेक्सी दिखता है। बहुत बहुत सही है, टेलविंड बहुत सही है, देख लेना है। ठीक है, ये वाला हो गया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन।
मैं और एक करा देता हूँ, कार्ड और चीज़, टोटल 3 फाइल है। मैं कार्ड और स्टाइल करा देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है ना, ये देखो, पहले बहुत कुछ नहीं था, पहले बस इतना सा था, अभी इतना सा है, और क्यू है, वो तुम घर बैठ के आराम से देखना, क्यू है, बोलने जाऊंगा तब हो गया इधर ही। घर बैठ के एक्सपेरिमेंट करना अच्छे से, इतना तो सीएसएस तो आता ही होगा। ये अभी क्या करता है, डॉट कार्ड, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से जूम इन जूम आउट होता है वीएस कोड में, पता नहीं है तो पता करेगा। हार्डली है किया भाई, कमेंट क्यों कर रिलेटिव पोजीशन, मार्जिन, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, इसका मतलब है कुछ फॉलो होता है शायद, टॉप, बॉटम, राइट लेफ्ट, ऐसा होता है। आउटलाइन, नन, कोई आउटलाइन नहीं होगा। ठीक है, बॉर्डर, ये तो हम लोग पिछले फाइल में 10 पिक्सल बॉर्डर देते हैं, सॉलिड, और कलर देंगे आरजीबी में, कितना देना है, 255, 255, 55, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो तो यार बहुत बड़ा है, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, आरजीबी, 90, 90, ये आरजीबी कलर कोड है, पता होगा तुम्हें, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 0, खास बताने का तो कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत हार्ड कुछ कर नहीं रहा, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, बेसिक सीएसएस करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दिस। बॉर्डर रेडियस राउंड थोड़ा बनाने के लिए 0.3 em, कलर, कलर 50, 50, जावास्क्रिप्ट के बाद वो भी आता है शायद, फायरबेस, शायद क्या आता ही है, हम लोग पिछला साल का प्रोजेक्ट देखोगे तो सब में ही फायरबेस था शायद, एक दो छोड़ के, एक छोड़ के, शायद एक छोड़ के, मैं भी यूज किया था फायरबेस, फायरबेस भी बहुत सही चीज़ है, HTML CSS के बाद सब सही है, सब अच्छे से करना। फॉन्ट फैमिली, ये भी प्रॉपर्टी होता है, ऐसा फॉन्ट चाहिए तुम लोग को वो देखने के लिए, फॉन्ट साइज, एज द नेम सजेस्ट, साइज ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट वेट, 700, कितना बोल्ड होगा, कितना नॉन बोल्ड होगा, विद 40%, और फाइनली हाइट, हाइट कितना रखो, 38%। कार्ड का ऐसा सीन है ना, जब तक कार्ड दिखेगा नहीं तब तक तुम्हें फील नहीं आएगा ये हम लोग क्या कर रहे हैं,
कार्ड तो अभी दिख नहीं रहा है, तो उसका फील शायद अभी ना आए। क्लास सेलेक्टर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऐसा हो, टीवी 75, 35। ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए। फिर से एक बार बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो क्या करना है? 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, वही जो हम लोग पिछले बार कर रहे थे। इतना बार तो कर लिया अब तक तो। 2 पिक्सल, या फिर कलर दे देना। कलर क्या है, ये है ना। फिर इंसेट, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, तो वही कलर दे देना। फाइनली 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 0 4। रेड, ग्रीन, ब्लू। 85 है, चेंज करना है क्या? यही रख दो यार। ग्रीन ही रेडी आएगा। फिर रेड वाला कुछ किया था नहीं? बस रेडी, रेडी, रेड रेड था। नहीं, yes, हाँ जी। हो गया क्या? और गाड़ी में तो गाड़ी में क्लास सेलेक्टर, कार्ड इमेज क्लास सेलेक्टर विथ 100% हाइट, हाइट 100%। टेर इंडेक्स बोला था, उसमें 1000 था तो इसमें कुछ भी दे दो, 500 चलो। चलो 500 नहीं देते, 5 देते। कुछ भी दो तो यार, फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल। ये शायद फाइनल है हम लोग का। फिर ये वाला फाइल भी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा था नहीं। इसमें जेड इंडेक्स देना है ना, कुछ भी यार, 500। टॉप 0, लेफ्ट 0, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पता है ना, फ्लो से बाहर निकाल देता है, और फिर तुम लोग उसको अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हो।
अच्छा भी होता है, कुछ केसेस में प्रॉब्लम भी देता है। सोच से बाहर निकल जाता है तो बाकी सब सिंक में नहीं रहता। शैडो छोड़ दो, स्मोक शैडो इसमें 100% दे दो। ऑर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल। कुछ था क्या? नहीं, ये वाला भी शायद हो गया। कुछ आया डिफरेंस? मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये कार्ड्स का था टेक्निकली, और कार्ड्स तुम लोग को जावास्क्रिप्ट करोगे तभी दिखेंगे कार्ड्स, तो अभी तो नहीं दिखेंगे। और कुछ बोलना है? हाँ, और हम लोग शायद तुम लोग को कोल्ड स्टील का कुछ मटेरियल्स दिए थे, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, वो सब का देख लेना। कोल्ड स्टील का जो कोर्स है वो बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा अच्छा कोर्स है, उसका मटेरियल देख लेना। और वेब डेव का सीएसएस वाला पार्ट देखो, ये फ्रेमवर्क्स बहुत है, ऐसे ऐसे बहुत है। चलो, टेलविंड से अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब है। तो उतना फोकस नहीं करने से भी होगा प्योर सीएसएस पे, लेकिन जावास्क्रिप्ट और फायरबेस ऐसी चीज़ है कि जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उसको अच्छे से करना। और और एक सीएसएस का फाइल है जिसको पॉपुलेट करना है, वो अंजना करा देगी। ओके, थैंक यू, लेट्स गो। ठीक है, तुम करा दो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हुई क्या? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो 2 फाइल्स तो हो गई हैं। एक ये फॉर्म्स को करते हैं स्टाइल, ये जो फॉर्म्स बनाया है, ये फॉर्म बनाया है और इन बटन्स को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये कंटेनर बनाया है, जो फॉर्म है, उसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। 50 पिक्सल। बाकी हमने जो यहाँ पे ये रेट्रो बटन्स बनाया है, ये बटन्स बनाया है जिसको क्लास दी है रेट्रो बटन, इसको स्टाइल कर लेते हैं। ये जो सारे बटन्स हैं, ये वाले और प्रीवियस नेक्स्ट वाले, इन सबको पैडिंग सारी प्रॉपर्टी सर ने बताई दी है एक बार, और सीएसएस वाली वर्कशॉप में भी बताया गया था। आउटलाइन यहाँ पे नन रखेंगे क्योंकि बॉर्डर दे रहे हैं तो इतना फर्क दिखता नहीं उधर से। बॉक्स शेडो के बारे में सर ने बता ही दिया है। बाकी सीएसएस के प्रॉपर्टीज तुम लोगों को एक बार W3 स्कूल से देख लेना। इंसर्ट यूज होता है कंटेनर या एलिमेंट है ना, उसके अंदर बॉक्स शेडो देने के लिए।
सीएसएस हम लोग ना इतना लिखते नहीं है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर ही सकते हैं। अब देखकर और फिर उसको मतलब इंटरनेट से कॉपी कर लिया और फिर उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट शेडो दिया है हमने, काम करते हैं पूरा ये रेट्रो बटन को इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखो चेंजेस दिख रहे हैं, बॉर्डर मिल गया है और बैकग्राउंड कलर ऐड हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसी क्लास को एक एक्टिव क्लास दे देते हैं। एक्टिव क्या करेगा, जब भी वो बटन या फिर वो एलिमेंट सिलेक्टेड होता है तब वो वर्क करता है। से यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो उसका बॉर्डर देखो चेंज हो गया। एक्टिव क्लास का ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी क्लासेस हमने बनाई थी, इन सबको लेते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्रीन ऑरेंज, ये बटन्स के कलर है, बैकग्राउंड कलर। और एक्टिव इसलिए जब भी वो सिलेक्टेड होगी, वो एलिमेंट या फिर वो बटन जब सिलेक्ट होगा तब ये वर्क करेगा। ऐसे ही हमने एक ऑरेंज बनाया है, यहाँ पे ऑरेंज स्काई ब्लू इन सबको भी ऐड कर देते हैं। बॉक्स शैडो दे देते हैं, जैसे ग्रीन को दिया वैसे ही इसको भी दे देते हैं। आरजीबी की वैल्यूज चेंज कर देंगे इसमें, ताकि हमारा कलर ऑरेंज आए। आरजीबी की वैल्यूज, कलर की वैल्यूज हम लोग याद नहीं रखते। हम लोग कलर कोड को डायरेक्ट उधर से नेट से देख सकते हैं और फिर अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी कलर चाहिए होता है। वीएस कोड पे तो ऑप्शन भी मिलता है यहाँ से कलर चेंज करने का डायरेक्ट। ऑरेंज और एक्टिव क्लास दे देते हैं जैसे ग्रीन को दिया है। देखो इसका कलर चेंज हो गया, ग्रास का ग्रीन हो गया और इसका ऑरेंज हो गया। बाकी हमने ऑरेंज दिया, स्काई ब्लू दिया, उसको भी ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस आरजीबी की वैल्यूज ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से डायरेक्ट भी चूज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। एक और एक्टिव क्लास बना लेते हैं, ताकि उसको जैसे बाकियों को कर रहे हैं इस वाले बटन पे भी वर्क करे। यहाँ देखो ये ब्लू हो गया, और जैसे वो एक्टिव हो जा रहा है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कलर बैकग्राउंड चेंज, बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने दिया बॉक्स शेडो का कलर चेंज कर रहे हैं। बाकी रॉक को हमने कौन सा कलर दिया है, रेड, इसको भी बना लेते हैं सेम।
ये देखो बटन्स यहाँ पे हमारे डिजाइन हो गए हैं, स्टाइल हो गए हैं। अब ये वाले बटन्स को भी, ये भी, इनको भी क्लासेस हमने सेम ही दी हुई है। इसके बाद हम लोग ये फॉर्म जो ये कंटेनर है जो हमारा, उसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं ताकि वो ठीक से दिखे। बॉर्डर भी दे देते हैं 3 पिक्सल का सॉलिड। बॉक्स की शैडो, इनसाइड बॉक्स शैडो, ये सारी वैल्यूज को याद रखना जरूरी नहीं है, याद रहेंगी भी नहीं। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको। टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। अब हम देखते हैं फिर से, ये देखो ये इनपुट चेंज, यहाँ पे चूज फाइल कर सकते हैं वैसे भी। बस यही था। और सीएसएस की प्रॉपर्टीज हमें याद रखना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, और सर ने बता ही दिया है बूटस्ट्रैप वगैरह के बारे में, और हम अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं फाइल्स को। बाकी यही था इस प्रोजेक्ट में सीएसएस का। इसके बाद कल तुम्हारा जेएस का सेशन होगा, इस प्रोजेक्ट के जेएस का, जो सीनियर्स लेंगे तुम्हारे। अभी तक प्रोजेक्ट में हमने इसका एचटीएमएल कर लिया है, इसका सीएसएस कर लिया है, बाकी जेएस बचा, वो कल के सेशन में होगा। आज के सेशन में इतना ही था। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेशन में लिख दो, या कुछ पूछना है तो। प्रोजेक्ट का कोड भी शेयर हो चुका है ग्रुप्स पे। अगर अभी तक उसमें कोई दिक्कत है, आज जितना कराया है उसको देख लेना, और कोई दिक्कत है तो किसी ग्रुप पे टेक्स्ट कर देना डाउट्स के लिए।
ठीक है, तो फिर अगर किसी को डाउट नहीं है, किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा, ग्रुप पे लिख देना किसी को कोई डाउट हो तो। बाकी ये प्रोजेक्ट इसलिए बनवा रहे हैं ताकि एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले प्रोजेक्ट बनाने का तुम्हें। डब्ल्यूओसी में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना होगा। डब्ल्यूओसी से रिलेटेड जितने भी, अगर तुम्हें अभी तक कितने डाउट आ रहे हो कि कब होगा, वो सब सारा शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा, कब होगा डब्ल्यूओसी, और मिड वैल्यूएशन का क्या क्या रहेगा सीन, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। कल इसी टाइम पे जेएस का सेशन होगा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन।